एज़ेकियल 31 चैप्टर 32 चैप्टर पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्शन में से। एज़ेकियल 31 चैप्टर 32 चैप्टर हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। द ग्लोरी ऑफ एसीरिया, इट्स ग्रेट फॉल, फर्स्ट वर्स से। And it came to pass in the 11th year, in the 3rd month, in the first day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt, and to his multitude, whom art thou like in thy greatness? Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature, and his top was among the thick boughs. The waters made him great, the deep set him up on high, with her rivers running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the trees of the field. Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his boughs were multiplied, and his branches become long, because of the multitude of waters when he shot forth. All the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his branches did all the beasts of the field bring forth their young, and under his shadow dwelt all great nations. Thus was he fair in his greatness, in the length of his branches, for his root was by great waters. The cedars in the garden of God could not hide him. The fir trees were not like his boughs, and the chestnut trees were not like his branches, nor any tree in the garden of God was like unto him in his beauty. I have made him fair by the multitude of his branches, so that all the trees of Eden that were in the garden of God envied him. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast lifted up thyself in height, and he hath shot up his top among the thick boughs, and his heart is lifted up in his height, I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the heathen. He shall surely deal with him. I have driven him out for his wickedness, and strangers, the terrible of the nations. I have cut him off, and have left him upon the mountains and in all the valleys. His branches are fallen, and his boughs are broken by all the rivers of the land, and all the people of the earth are gone down from his shadow, and have left him. Upon his ruin shall all the fowls of the heaven remain, and all the beasts of the field shall be upon his branches, to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water, for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down in the pit, to the pit. Thus saith the Lord God, in the day when he went down to the grave, I caused a mourning, I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof. And the great waters were stayed, and caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit, and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, shall be comforted in the nether parts of the earth. They also went down into hell with him unto them that he is slain with the sword, and they that wear his arm, that dwelt under his shadow in the midst of the heathen. To whom art thou thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? Yet shalt thou be brought down with the trees of Eden unto the nether parts of the earth. Thou shalt lie in the midst of the uncircumcised with them that be slain by the sword.
This is Pharaoh and all his multitude, said the Lord God. Chapter 32. Lamentation for the fall of Egypt. First verse. And it came to pass in the 12th year, in the 12th month, in the first day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation for Pharaoh, king of Egypt, and say unto him, Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in the seas, and thou comest forth with thy rivers, and troublest the waters with thy feet, and foulest their rivers. Thus saith the Lord God, I will therefore spread out my net over thee with a company of many people, and they shall bring thee up in my net. Then will I leave thee upon the land. I will cast thee forth upon the open field, and will cause all the fowls of the heaven to remain upon thee, and I will fill the beasts of the whole earth with thee. And I will lay thy flesh upon the mountains, and fill the valleys with thy height. I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to the mountains, and the rivers shall be full of thee. And when I shall put thee out, I will cover the heaven and make the stars thereof dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, said the Lord God. I will also vex the hearts of many people when I shall bring thy destruction among the nations into the countries which thou hast not known. Yea, I will make many people amazed at thee, and their kings shall be horribly afraid for thee, when I shall brandish my sword before them, and they shall tremble at every moment, every man for his own life, in the day of thy fall. For thus saith the Lord God, the sword of the king of Babylon shall come upon thee. By the swords of the mighty will I cause thy multitude to fall, the terrible of the nations, all of them, and they shall spoil the pomp of Egypt, and all the multitude thereof shall be destroyed. I will destroy also all the beasts thereof from beside the great waters. Neither shall the foot of man trouble them any more, nor the hoofs of the beasts trouble them. Then will I make their waters deep, and cause their rivers to run like oil, saith the Lord God. When I shall make the land of Egypt desolate, and the country shall be destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell therein, then shall they know that I am the Lord. This is the lamentation wherewith they shall lament her. The daughters of the nations shall lament her. They shall lament for her, even for Egypt, and for all her multitude, saith the Lord God. It came to pass also in the 12th year, in the 15th day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, wail for the multitude of Egypt, and cast them down, even her and the daughters of the famous nations, unto the nether parts of the earth, with them that go down into the pit. Whom dost thou pass in beauty? Go down, and be thou laid with the uncircumcised. They shall fall in the midst of them that are slain by the sword. She is delivered to the sword. Draw her and all her multitudes. The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell, with them that help him. They are gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword. As Ashur is there, and all her company, his graves are about him, all of them slain, fallen by the sword, whose graves are set in the sides of the pit, and her company is round about her grave. All of them slain, fallen by the sword, which caused terror in the land of the living. There is alarm, and all her multitude round about her grave. All of them slain, fallen by the sword.
which are gone down uncircumcised into the nether parts of the earth, which caused their terror in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit. They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude. Her graves are round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword. Though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit. He is put in the midst of them that be slain. There is Meshech, Tubal, and all her multitude. Her graves are round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword, though they caused their terror in the land of the living. And they shall not lie with the mighty that are fallen of the uncircumcised, which are gone down to hell with their weapons of war, and they have laid their swords under their heads. But their iniquities shall be upon their bones, though they wear the terror of the mighty in the land of the living. Yea, thou shalt be broken in the midst of the uncircumcised, and shalt lie with them that are slain with the sword. There is Edom, her kings, and all her princes, which with their might are laid by them that were slain by the sword. They shall lie with the uncircumcised, and with them that go down to the pit. There be the princes of the north, all of them, and all the Zidonians, which are gone down with the slain, with their terror. They are ashamed of their might, and they lie uncircumcised with them that be slain by the sword, and bear their shame with them that go down to the pit. Pharaoh also shall see them. Pharaoh shall see them and shall be comforted over all his multitude, even Pharaoh and all his army slain by the sword, saith the Lord God. For I have cast my terror in the land of the living, and he shall be laid in the midst of the uncircumcised with them that are slain with the sword, even Pharaoh and all his multitude, saith the Lord God. हम हिंदी में ये वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल की भविष्यवाणी 31 अध्याय और 32 अध्याय बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। मिस्र की तुलना देवदार के वृक्ष से। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कहे, अपनी बड़ाई में तो किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियाँ उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियाँ निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई। उसकी टहनियाँ बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसके टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसकी न छिपा सकती थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान पर भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यूँ कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थी है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा।
देखा परमेश्वर कैसा फाइट करता है। वो खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसने सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है। जो ज़्यादा टैं करेगा उसके लिए परमेश्वर उससे ज़्यादा टैं करने वाले के हाथ में दे देगा। ओके, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसके दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं वे उसको काटकर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएंगी और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढाँप दिया और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थी और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यों ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मिस्र के राजा की तुलना मगरमच्छ से। 32 अध्याय पहले वचन से। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पावों से मथकर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा। जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से सींचूंगा और उसके नाले तुझ से भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखो यहाँ पे 8 वचन को ध्यान रखिए। उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। यानी शैतान के जगत के अंदर परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस नहीं रहते हैं। ओके, तो शैतान के जगत के अंदर के आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए पढ़ा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब हम ज्योति में हैं तो अंधकार की जानकारी में क्या सच्चाई है? कुछ भी नहीं है। जो भी है वो परमेश्वर के वचन के अंदर सच्चाई है। तो अंधकार जो जी रहा है वो व्यर्थ का जीवन जी रहा है, व्यर्थ के इंस्ट्रक्शन पर जी रहा है। उसके साथ हमको क्या लेना देना है? हमको वचन की गहराई चाहिए। तब से मैंने अपने मन को वचन के ऊपर लगा दिया। ओके, ये ध्यान रखिए, उनके पास परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस नहीं है। 9 वचन से आगे, 9 वचन से आगे, जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रिस उपजाऊंगा।
मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा, और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे, और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसी शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तट पर से नष्ट करूंगा, और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल के समान बहेंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश का उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उससे छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय में यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मृतकों का संसार 17 वचन से आगे। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है? तू उतरकर खतनाहीनों के संग पड़ा रहे। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे, उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। इसलिए मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ। सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अश्शूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सबके सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहाँ एलाम है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए। उन्होंने जीवन लोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर सियाही छाई हुई है और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहाँ सारी भीड़ समेत मेशेक और तुबल है, उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न रहेंगे जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहाँ उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्त है, क्योंकि जीवन लोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजता था। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहाँ एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहाँ उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी है, जो मरे हुओं के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं और कब्र में अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, तूने दिया हुआ ये चैप्टर्स हमने पढ़ तो लिया है और हम समझ भी रहे थे बीच बीच में बहुत कुछ, लेकिन हम तुझसे चाहते हैं कि हमें अकेले में तू ये वचन को और ज़्यादा मजबूती से हमारे अंदर खोल, और अगर हमसे बन पड़ा तो हम इसे एक दूसरे को सिखाने में भी पिता इस्तेमाल कर सके। हमें बहुत कुछ समझ में आ चुका था, लेकिन हम उसे सिखाने में अपने मुंह को दूसरे शब्दों से नहीं भरे, क्योंकि हम चाहते थे खुदा कि पवित्र आत्मा तू एक समय ले और बहुत और अच्छे से हमारे मन के अंदर इस टीचिंग्स को उतार। नासरी यीशु के नाम में पिता तुझे धन्यवाद करते, फिट एंड फिक्स कर रहा है तू हमें, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तू हमें लेकर आ रहा है। तुझे धन्यवाद करते, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बोलते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 14 चैप्टर 10 वर्स से 21 वर्स, 1 क्रॉनिकल्स 24 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 10 वचन से 21 वचन, पहले इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अपने मर्जी से हमने व्यक्तिगत समय में पढ़ने का निश्चय किया है। अब अगर आप सबके साथ मिलकर पढ़ना चाहते, आप जैसे अपने मर्जी से, जैसे आपकी योजना में पढ़ना चाहते वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अकेले में बैठकर इसीलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपके अंदर जो परमेश्वर चाहता है आपकी व्यक्ति बनाने के लिए, आपका शहरपना बनाने के लिए, आपके अंदर का डैमेज्ड अवस्था रिपेयर करने के लिए, आपके अंदर कुछ आशीषों को रिस्टोर करने के लिए बहुत ऐसा काम रहता है जो परमेश्वर आप अकेले में जब वचन पढ़ते हैं तब कर रहा होता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेशन कर रही थी कि आप अकेले में बैठकर पढ़ते हैं तो आज का ये चैप्टर्स है, और इन चैप्टर्स को पढ़ते समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, और ऐसा होते हुए परमेश्वर का आत्मा जो हमें सीखने के लिए दिया है, जो पवित्र वचन सिखाने के लिए, निश्चित हमने इसका लाभ उठाना है और ये समय को पूरा होने के लिए परमेश्वर के अधीन रहना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, नासरी यीशु मसीह के